अस्सलाम वालेकुम। आज हमने स्टार्ट किया था रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट। होप सो कि आपने कुछ चीजें देखी होगी। लास्ट ईयर के मैंने आपको बता दिया था कि इसको देखना। तो सबसे पहले जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें मैंने आपको बताया था दो। यहाँ पे जाके एसोसिएटिव एंड डिसोसिएटिव, मेनली वही दो है, एसोसिएटिव मैकेनिज्म एंड डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। अगर आप एसोसिएटिव में देखेंगे तो यहाँ पे जाके जनरली 16 electron and 17 electron species undergo substitution via association. Substitution via association. या associative mechanism. इसी तरीके से अगर आप इसको लिखेंगे तो the complex which follow the 18 electron rule, the complex which follow 18 electron rule, generally undergo substitution via dissociative mechanism. Second, the rate of associative mechanism is fast and the rate of dissociative mechanism is slower. Rate of associative mechanism is fast. And rate is slow. और दोनों में अगर आप देखेंगे तो जनरल एक चीज है कि the substitution can undergo either thermal or photochemical. अगर दोनों को देखेंगे the substitution reactions can be carried out. The substitution reaction can be carried out under thermal or photochemical conditions. Under thermal or photochemical method. यहाँ तक आपको जनरलाइज था इसके बारे में कि रिएक्शंस ऑफ मेटल कार्बोनेट्स के बारे में. नाउ वी विल सी द जनरल मैकेनिज्म. यू हैव आल्सो रेड दैट, बट आई विल जस्ट रिकैपिचुलेट यू अबाउट द general mechanism of associative mechanism. General mechanism of associative mechanism. General mechanism for associative. क्या होता है यहाँ पे जाके सबसे फर्स्ट in this case, first, for example, LNM C triple bond O plus PR3. We have to substitute here PR3 and here the CO will replace. Firstly, what happens in this, if it is an associative mechanism, it follows the 16 electron species will be this, and this is the 2 electron species. Now what will happen first? There is an association of these two,
and the rate will be dependent on both this and this, both of these. इसमें जाके अगर आप देखेंगे, that is why it is known as SN2 also. The rate depends upon both the substrate as well as the substituted ligand. तो यहाँ पे हम लिखेंगे LNM C triple bond O and this PR3. Now this is an 18 electron supershield, and in this step second, what happens? In second step, there is a removal of this CO as a removal of this, and it becomes LNM PR3 16 electron supershield back and plus CO in a gas form. This is the general mechanism of associative general mechanism of associative mechanism. ठीक है बेटा? इसी तरीके से आप देखेंगे dissociative mechanism. Dissociative mechanism में हम क्या कर रहे थे? In case of dissociative mechanism, in the step first, just to recapitulate, in case of step first, LNM C triple bond O, this species is the 18 electron species. Now, in the first step, the rate of reaction depends only on the substrate, not on the substitute, not on the adding ligand. जो जाके यहाँ पे add ligand होगा उस पे dependent नहीं है. इसलिए जो first step है, that is the slowest step, and rate depends only upon this complex. And इसमें क्या होता है कि firstly there is a breakdown of this bond, and it becomes the 16 electron species, and it leaves and it removes as a gaseous molecule, CO. After that, in step second, this step is passed, LNM plus PR3. It is passed step, and it becomes LNM PR3. This is now 18 electron species. तो इस तरीके से जनरल मैकेनिज्म जो आपको लास्ट ईयर भी बताया डिटेल में, तो यहाँ पे मैंने जस्ट रिकैपिचुलेट आपको किया कि क्या होता है. फर्स्ट स्टेप में कैसे क्या होता है कि एसोसिएटिव मैकेनिज्म में, एसोसिएटिव मैकेनिज्म पहले से जाके वो वहाँ पे ऐड होता है, और रेट डिपेंड्स ऑन बोथ द एडिंग लिगैंड एंड एज वेल एज द सबस्ट्रेट, जो भी यहाँ पे जाके कॉम्प्लेक्स है. और जाके डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि स्लो स्टेप है, उसमें जाके पहले डिसोसिएशन होता है. आफ्टर दैट द एडिंग लिगैंड कम्स एंड अटैक्स ऑन दिस. ठीक है, तो इसको SN1 बोलते हैं और इसको SN2 बोलते हैं. तो रेट के बारे में आपको बता चुका हूं, तो वो रेट आप ऐड कर सकते हो उसमें. ठीक है, अब जाके इसमें कितने रिएक्शंस हैं, कौन कौन सी रिएक्शन है इस पे, अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. आपके पास अगर ये है VCO6, और आपको पता है कि VCO6 से 17 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, आपको कैलकुलेट करना है जल्दी. है 6 CO का हो गया 12 प्लस 5 हो गए टोटल 17 इलेक्ट्रॉन, जिससे 17 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. और आपको पता है कि अगर ये 17 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, इट विल रिएक्ट because the 18 electron species somehow stable, and it will not react fastly, it will react slowly. But if it is a 17 electron species, yeah, it is a 16 electron species, it will react fastly. 17 electron species hai, so when it reacts with the PR3, it will give at minus 70 degrees Celsius and 90-minute reaction. The reaction condition, these are reaction conditions here. तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे VCO5 and PR3. ठीक है, if you see this reaction, VCO6 negative. Now this reaction, this complex is 18 electron species. Why? Because one atom has 5 electrons, CO12 has 12 electrons, and this minus plus 1, total electrons is 18 electrons. And this reaction at this reaction condition, जब जाके इसको देखा गया इस reaction condition पे -70 डिग्री सेल्सियस पे 90 मिनट, this do not react. In this reaction condition, this complex do not react. तो यहाँ पे जाके react कर ही नहीं रहा है, यहाँ पे सबस्टिट्यूट नहीं हो रही है, do not react.
इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखेंगे बेटा, दूसरी एग्जांपल भी अगर आप देखेंगे CrCO6, ऑल्दो वो वहाँ पे रिएक्शन होती है, CrCO6 को मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ। CrCO6, Cr में कितने हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, इसका मतलब 6 है इसका, और इसका 12 है, टोटल इज इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन, जिससे 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। बट जब जाके इसको रिएक्शन दिखा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो यहाँ पे रिएक्शन होती है, यहाँ पे रिएक्शन जरूर होगी, तो बनता है CrCO5, PR3। बट अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे, अगर आपका क्वेश्चन ये होगा कि रेट किसमें ज्यादा होगी, क्योंकि जनरली जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो होता है कि आप एमएससी के लिए आप उसको जाके याद करेंगे, ये एक रिएक्शन होगी, दूसरी रिएक्शन होगी, क्योंकि आप पढ़ते हो इस वक्त रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेल्स। तो आपने रिएक्शन याद की कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, वाया डिस्ट्रीब्यूटिव मैकेनिज्म, वाया एसिटिव मैकेनिज्म, वो आप बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ 17 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज फॉलो कर रहा है कि 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज फॉलो कर रहा है। बट अगर आपको रेट के बारे में पूछा जाएगा, आपको दो कॉम्प्लेक्सेस दिए गए, ये कॉम्प्लेक्स भी दिया गया और ये कॉम्प्लेक्स भी दिया गया और ये कॉम्प्लेक्स भी दिया गया, तीनों कॉम्प्लेक्स आपके पास है, और आपको बोला जाएगा कि सबसे ज्यादा रेट किसमें फास्ट होगी, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे जाके देखना है कि दिस फर्स्ट वन, the first complex which follows the 17 electron species will be very reactive compared to that of VCO6, which is negligible, which cannot be react, and then that of CrCO6. तो यहाँ पे जाके रेट भी किस पे डिपेंड है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, यहाँ पे जाके ये किसको फॉलो कर रहा है, whether it follows the 17 electron species, whether it follows the 18 electron species. There are number of factors, other factors. For example, आपने पढ़ा लास्ट टाइम भी, if there is a bulky ligand, if there is a bulky ligand here, अगर जाके यहाँ पे किस कॉम्प्लेक्स में कोई bulky ligand भी होगा, यहाँ पे if there is a bulky ligand, तो वहाँ पे सिटिरिक हिंडनेस की वजह से भी डिस्ट्रीब्यूटिव मैकेनिज्म को फेवर करेगा। There are other factors also. तो यहाँ पे अगर CO कार्बोनिल ligand के बगैर कोई और ligand होगा, then these ligands also plays a role in this rate of the reaction. Rate of reaction पे वो वहाँ पे जाके जरूरी वो रोल करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे कोई लिगेंड होगा जो होगा ओनली सिग्मा डोनर, दैट सिग्मा डोनर विल डेफिनेटली electron density, that will increase the electron density on metal, which in turn increase the back-pair bonding with CO, and now the substitution of CO will be very less, so rate will be very less. Why? Because if there is any ligand which increase the electron density on the metal, which in turn increase the back-pair bonding of with CO. तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि किसमें जाके रेट फास्ट होगी, किसमें स्लो होगी। एक तो यहाँ पे रिएक्शन आप पढ़ेंगे कि मतलब बहुत सारे रिएक्शन है मेटल कार्बोन्स के, बट ये भी आप याद रखेंगे कि कौन सी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आपको आना चाहिए, और दूसरी बात आपको ये देखना है कि वहाँ पे कौन कौन से लिगेंड है, ठीक है बेटा। इसी तरीके से अगर आप आगे बढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल निकल के केस में भी आपको दिखा रहा हूँ एक रिएक्शन जल्दी। फॉर एग्जाम्पल NiCO4, यहाँ पे जाके अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे भी रिएक्शन जब PR3 से करेगा तो यहाँ पे CO निकलेगा, तो फर्स्ट क्या बनेगा NiCO3 प्लस PR3। अब याद रखिएगा बेटा और एक बात, अब देखिएगा बेटा इसमें जाके क्या है कि जो ये निकल वाला है, निकल अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे 8 इसके 10 इसके, तो ये भी 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज को फॉलो कर रहा है। नाउ सी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब CO एक निकल रहा है फर्स्ट CO, अब यहाँ पे दूसरा CO भी निकल सकता है, PR3 और एक ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे बनेगा NiCO2 एंड PR3 पूरा ध्यान देना बेटा। बट अगर आप रेट देखेंगे यहाँ पे और रेट देखेंगे यहाँ पे, अगर दोनों में रेट देखेंगे, रेट विल बी फास्ट इन केस ऑफ फर्स्ट एंड रेट विल बी वेरी स्लो ऑन सेकंड। व्हाई? बिकॉज PR3 comes here, जब PR3 आया तो PR3 आपको पता है कि यहाँ पे जाके PR3 बैक पे बॉन्डिंग नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे इट इज ऑनली सिग्मा डोनर स्पीशीज, ये जाके सिग्मा डोनर है। अगर ये सिग्मा डोनर है तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इट विल एनहांस द रेट, इट विल एनहांस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द मेटल, which in turn increase the back pair bonding with 3CO, जो भी 3CO यहाँ पे, इनको जाके यहाँ पे back pair bonding increase होगी। Now the replacement of CO will be difficult than that of this, क्योंकि इसमें चारों की चारों क्या थे CO, और वो चारों CO क्या थे, वो सब के सब बैक पे बॉन्डिंग दिखा रहे थे। बट अब जाके जो लिगेंड ऐड हुआ, दैट इज सिग्मा डोनर ओनली, एंड इट विल नॉट फॉर्म द पाई बॉन्ड विद PR3,
तो उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल के ऊपर ज्यादा बढ़ेगी और जाके बैक में बॉन्डिंग विद CO विल एनहांस। तो उससे क्या होगा कि बॉन्ड बिटवीन निकल एंड C बिकम स्ट्रॉन्गर। तो जब निकल और C के बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा तो नाउ दिस रिप्लेसमेंट ऑफ CO विल बी डिफिकल्ट। इसलिए जाके रेट अगर फर्स्ट को देखेंगे और सेकंड को देखेंगे तो यहाँ पे ये भी फर्क होगा। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है कि वहां पे क्या होगा, किस तरीके से होता है, ये चीज आपको जरूर देखनी होगी। ठीक है, मैं जनरलाइज करके कुछ रिएक्शन आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे जाके देखेंगे, मैं आपको यहाँ पे भी इस पे भी दिखाऊंगा, बट पहले ये आप कोई भी रिएक्शन आप इसमें कर सकते हो, मतलब कार्बन के साथ कोई भी रिएक्शन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप MCO6 को लेंगे, अब यहाँ पे आप कोई भी लिगेंड ऐड करो, सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे आप करा सकते हो। मेटल में भी यहाँ पे जो मेटल होगा वो यहाँ पे क्रोमियम भी हो सकता है, मॉलिब्डेनम भी हो सकता है, वेनेडियम भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिएगा बेटा क्या होगा। मैंने आपको बोला थर्मल एज वेल एज दिस फोटोकेमिकल मेथड यहाँ पे यूज होता है जनरली। अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसको रिएक्शन कराएंगे पहले इससे 1,3-ब्यूटाडाइन। ठीक है, 1,3-ब्यूटाडाइन। अब ये जाके कितने इलेक्ट्रॉन देगा बेटा, ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा, ये देगा आपको 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको यहाँ पे उतने ही कार्बोनिल को रिमूव करना होगा। जितने वहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उतने आपको कार्बोनिल की जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो रिमूव करने होंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन, एक CO कितने दे रहा है, 2। इसलिए जाके यहाँ पे रिप्लेस कितने होंगे, 2 CO रिप्लेस होंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, MCO4 और यहाँ पे इस तरीके से मैं इसको बनाऊंगा। तो ये इसको डोनेट करेगा, बेटर टू राइट दिस वे, ये और ये यहाँ पे डोनेट करेगा। ठीक है, तो प्लस CO 2CO बाहर निकलेगा। ठीक है, अगर ये सही से नहीं दिख रहा है तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो, क्योंकि आपको भी बोलेंगे कि सर ने कैसे दिखा, ये और ये इसके साथ, ये इसके साथ। ठीक है, ये तो वो 2 CO निकलेंगे, बराबर आया वापस। अब देखो 6 यहाँ पे थे, 12 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, यहाँ पे 4 हो गए ये, तो 8 इलेक्ट्रॉन ये, 9 10 11 12 बराबर आ गए 12 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से अगर आप इसको यहाँ पे ऐड करना होगा, फॉर एग्जांपल इफ यू ऐड दिस मॉलिक्यूल, डरना नहीं है इसमें जाके किसी भी रिएक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल आपके पास ये है, क्योंकि आप जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को देखते हो ना थोड़ा सा अकेला, तो आप बोलते हो बस छोड़ दो इसको, अब करने की जरूरत नहीं, टफ होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अगर इसके साथ रिएक्ट करना होगा MCO6 को, तो यहाँ पे भी ये स्पीशीज क्या होगी, 4 इलेक्ट्रॉन होगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 2 CO को फिर से निकालो, MCO4, और यहाँ पे यही लेके आओ, यही फिर से बनाऊंगा मैं यहाँ पे, और इस तरीके से बनाएंगे। अब ये इसको यहाँ पे और ये यहाँ पे, थोड़ा सा क्योंकि मेरे पास जगह कम है, आप सही से बनाएंगे इसको बनाना है और मेटल को इस तरीके से दिखाना है, MCO4, तो 4 इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरीके से नंबर ऑफ रिएक्शन विल बी देयर, आप जाके करेंगे, मैं देखता हूँ कौन कौन करेगा। इसमें जाके फॉर एग्जांपल आप इसमें करेंगे eta4COD। COD क्या होता है, साइक्लोऑक्टाडाइईन। साइक्लोऑक्टाडाइईन का स्ट्रक्चर ऐसे है, साइक्लोऑक्टाडाइईन का स्ट्रक्चर इस तरीके से बना के रखना। ठीक है, बना के रखो और इस रिएक्शन को कर लो। ये साइक्लोऑक्टाडाइईन, ये 8 होंगे बराबर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो डाइईन है क्योंकि जाके 2 ही डबल बॉन्ड है, तो ये eta4 मोड होगा ही। eta4 मैंने लिखा है इसको क्योंकि ये eta2 में भी हो सकता है, इसलिए मैंने इसकी हैप्टिसिटी आपको यहीं जाके दी कि इसका मोड जो होगा eta4 मोड। इसका मतलब आपको फिर से 2 CO निकालने हैं और जाके यहाँ पे इसके साथ रिएक्ट कराना है। ठीक है, इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको भी देखेंगे, प्रोपोलियम आयन को भी फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस वाले मॉलिक्यूल से भी इसको कराएंगे, ये रिएक्ट इस तरीके से बनाएंगे इसको, इससे भी कराएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन ये देगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन तक दे सकता है। इसका मतलब यहाँ पे 3 CO निकल सकते हैं, इसमें जाके 3 CO निकल सकते हैं, 3 CO यहाँ पे रहेंगे, क्योंकि ये भी डोनेट होगा, ये भी डोनेट होगा, ये भी डोनेट होगा M को। जब ये M को होंगे 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट, तो यहाँ पे होंगे MCO3 ही बचेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप नंबर ऑफ रिएक्शंस को करा सकते हो यहाँ पे। तो बिफोर, तो मैं पहले आपको यहाँ पे ये दिखाऊंगा कुछ रिएक्शन, क्योंकि मुझे पता है आपको लिखना भी होता है, तो इसलिए मैंने कुछ चीजें यहाँ पे आज आपके लिए रखे हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा बेटा। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आया होगा डेफिनेटली दिस PDF। तो सबसे पहले अगर आप मेटल कार्बोनेट्स की देखेंगे, मैं कुछ रिएक्शन आप यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ। तो एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताना चाहता हूँ, पहले सबसे पहले मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में।
तो फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी क्या क्या है वो भी आप देखिएगा। मेजॉरिटी ऑफ द मेटालिक कार्बन आर लिक्विड और वोलेटाइल सॉलिड्स, ठीक है। तो कलर क्या होता है, मोस्ट ऑफ द मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स आर कलरलेस टू पेल येलो, VCO6 is bluish black solid, polynuclear carbonyl exhibit a darkened color. Okay, next, solubility. Metal carbonyls are soluble in organic solvents like glacial acetic acid, acetone, benzene, carbon tetrachloride, and ether. So generally, these metal carbonyls are soluble in these organic solvents. ठीक है। तो टॉक्सिसिटी आपको कल भी बता दिया, कुछ चीजों की टॉक्सिसिटी, कुछ कॉम्प्लेक्सेस की टॉक्सिसिटी। ड्यू टू लो मेल्टिंग पॉइंट एंड पुअर थर्मल स्टेबिलिटी दे शो टॉक्सिसिटी रिलेटेड टू द कॉरस्पॉन्डिंग मेटल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। क्योंकि अगर मेल्टिंग पॉइंट इनका कम है और पुअर थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबल ये नहीं है, जो ही आप इसको हीट करेंगे तो डिकम्पोज हो जाते हैं। दैट इज वाई यहाँ पे जाके टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, किसके रिलेटेड, कॉरस्पॉन्डिंग टू द मेटल। क्योंकि मेटल्स अगर आप देखेंगे अगर हाई कंसंट्रेशन में जाएंगे तो दे आर टॉक्सिक इन नेचर। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड भी टॉक्सिक है, क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन के साथ मिल गया तो वहां पे जाके भी प्रॉब्लम करेगा। दिस आपको पता होगा इसके बारे में कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कंपीट करता है तो ये इससे जाके दोनों क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज टॉक्सिक, मेटल इज टॉक्सिक, तो इस वजह से टॉक्सिसिटी ज्यादा है। Exposure to these compounds can cause damage to the lungs, liver, brain, kidney. Nickel tetracarbonyl exhibits strongest inhalation toxicity. These compounds are carcinogenic over long-term exposure. अगर ज्यादा देर तक रहेगा तो carcinogenic है ये, तो इसलिए जाके खास ख्याल रखना होगा इनको जब हैंडल करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से बेटा अगर आप देखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में, all the metal carbonyls other than vanadium hexacarbonyl are diamagnetic, ठीक है। The metal with even atomic number form mononuclear carbonyls, thus all electrons in the metal atom are paired. In case of dinuclear metal carbonyls formed by the metal with odd atomic number, the unpaired electrons are utilized for the formation of metal bonds. अब जनरली अगर आप देखेंगे जो सिंगल जिस पे जाके एक ही मेटल होता है, मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स जो होते हैं, मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स का मतलब है जिसमें जाके एक ही मेटल होता है, तो एक ही मेटल उसमें होगा। इसमें अगर आप जिसमें एक ही मेटल होगा बेटा, उस वो क्या है, वो जनरली क्या है, डायमैग्नेटिक। उसमें जाके जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं इवन नंबर के होंगे तो वो पेयर्ड होंगे। तो बट अगर आड होगा, आड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, वो तो होगा ही पैरामैग्नेटिक। बट अगर वो बना रहा है डाइन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल तो डेफिनेटली वो आड इलेक्ट्रॉन दूसरे मेटल के साथ क्या करेगा, पेयर अप करेगा और वो भी बनेगा क्या, डायमैग्नेटिक, ठीक है। तो ये चीज भी है इसमें। और थर्मल स्टेबिलिटी तो अभी बता ही रहा था मैं आपको इसके बारे में। मोस्ट ऑफ द मेटल कार्बोनिल्स आर मेल्ट और डिकम्पोज एट लो टेम्परेचर। सॉलिड कार्बोनिल्स सब्लाइम इन वैक्यूम बट दे अंडरगो सम डिग्री ऑफ डिग्रेडेशन, ठीक है। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, मेटल कार्बोनिल्स आर थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, they undergo aerial oxidation with different rates. CO2, CO8 and FeCO9 are oxidized by air at room temperature, while chromium and molybdenum hexacarbonyls are oxidized in air when heated. तो इसका मतलब जो थर्मल स्टेबिलिटी इनकी है वो बहुत कम है। तो इस चीज का आप खास ख्याल रखेंगे कि जो यहाँ पे दो चीजें आपने इसमें खास देखी प्रॉपर्टीज के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। एक तो थर्मल स्टेबिलिटी इनकी बहुत कम है क्योंकि जाके एट लो टेम्परेचर दे आर डिग्रेडेड, एंड सेकंड वन कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी भी क्या अनस्टेबल है बिकॉज दे अंडरगो ऑक्सीडेशन, एरियल ऑक्सीडेशन एज वेल एज एयर के साथ यहाँ पे एरियल ऑक्सीडेशन होगी। अगर आप देखेंगे CO2, CO8 की, FeCO9 की, या इस तरीके से अगर आप क्रोमियम मॉलिब्डेनम का देखेंगे वो भी ऑक्सीडाइज होते हैं तो जब हीट करते हैं, ठीक है। ये तो डायरेक्टली होते हैं ऑक्सीजन के साथ, बट ये तब होंगे ये वाले मेटल जब इनके हीट भी देते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी जो मैं भी बता रहा था आपको, ये आपको रिएक्शन हेल्प करेगा आपको उतारने में। तो इसलिए जाके मैंने सोचा कि क्योंकि रिएक्शन जब बोर्ड पे लिखते हैं तो मिटाता मैं जल्दी हूँ, तो इसलिए जाके मैंने सोचा कि आपको यहाँ पे मटेरियल भी थोड़ा सा प्रोवाइड करूंगा और मैं इसका PDF आपको भेजूंगा लिखने के लिए। Substitution of carbon monoxide ligands by various monodentate bidentate ligands can carried out by using thermal or photochemical reaction, जो मैं बता रहा था, ठीक है। वही बातें लिखी हैं दूसरे तरीके से। Monodentate ligands like isocyanide, cyanide, phosphine are and ethers can partially or completely replaced by carbonyl group। तो रिएक्शन यहाँ पे हैं जो अभी तक मैं डिस्कस कर रहा था, आप देखेंगे अब यहाँ पे एग्जांपल्स आपको ज्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखे हैं फॉर एग्जांपल FeCO5 है, 2 टाइम्स CnR है, तो यहाँ पे 2 आगे, यहाँ पे CnR तो CO3 आएगा, तो 2 CO बाहर निकलेंगे। जितने आप लिगेंड यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरी क्लास में भी 24 स्टूडेंट्स हैं, अगर 2 निकलेंगे 2 आएंगे, सब्स्टिट्यूशन का मतलब वही है, किसी के बदले कोई आ रहा है, ठीक है।
तो सिंपल सी बात है, जब आप ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हो तो हेलोजन निकल रहा है और जाता है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब जितने गए उतने आएंगे। और याद रखेंगे हमेशा, अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो न्यूक्लियोफाइल को ही निकलना होगा, अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल को ही निकलना होगा। तो ये चीज आप दिमाग में रखिएगा, ऑर्गेनिक में ये चीज आप पढ़ते हो। इसी तरीके से अगर 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज गया तो 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज को ही आना पड़ेगा, अगर 3 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज गई तो 3 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज को आना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल अभी नाइट्रोसिल के बारे में आप देखेंगे कि नाइट्रोसिल 3 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, तब जाके किस तरीके से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिमूव होते हैं। तो जनरली जब आप सब्स्टिट्यूशन करते हो तो आपको देखना होता है कि ये कितना इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो जितने यहाँ पे एग्जांपल्स हैं वो सबके सब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। तो यहाँ पे इसलिए जाके आप देख रहे हो कि दो, वो आपको सीधे कैलकुलेशन यहाँ पे इजीली कर रहे हो, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखेंगे, रिएक्शन विद मेटेलिक सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैं इस टॉपिक को अलग से लेना चाहता हूँ आगे, बट यहाँ पे आप खास ख्याल रखिएगा बेटा। तो मेटेलिक सोडियम के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, अभी तक जितनी भी आपने रिएक्शन ऊपर देखी वो सबके सब रिएक्शन जो है वो वहां पे जाके मेटल इज इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। बट इन दिस केस रिएक्शन विद मेटेलिक सोडियम जो है, इसमें जाके मेटेलिक सोडियम विद एमलगम कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस द मेटल कार्बन। यहाँ पे मेटल कार्बन जो होता है रिड्यूस होता है, इसका मतलब क्या है, मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, मेटल गेन करता है इलेक्ट्रॉन को। आप देखिएगा यहाँ पे CrCO6 2 टाइम्स Na2CO CrCO5 का मतलब क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो चुके हैं। क्योंकि अगर आप इसको लिखना चाहोगे तो आपको किस तरीके से इसको लिखना होगा, आप इसको जब लिखना चाहोगे तो इसको आप लिखेंगे इस तरीके से CrCO5 2 नेगेटिव, यहाँ पे आप इसको लिखेंगे CrCO5, ठीक है, CrCO5 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव एक्चुअली, फिर उस 2 नेगेटिव की जगह क्या आता है, सोडियम आता है, ठीक है। तो ये से मुझे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये बना, यहाँ पे अगर आप देखेंगे आप Cr के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पे क्या था, 0, 0 से -2 हुआ, तो इसका मतलब इट गेन्स इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाई इट इज इट रिड्यूस्ड, क्रोमियम रिड्यूस्ड टू, यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट था, यहाँ पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्योंकि आपको बहुत सारे एग्जांपल्स में नहीं मिलता है कि जनरली माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे आप एग्जांपल्स को देखेंगे, यहाँ पे माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट भी है। इसी तरीके से Mn2CO10, तो अगर आप इसको भी देखेंगे तो देखो बेटा, मैं आपको इसमें एक बात बताना चाहता हूँ, Mn2CO10 है, तो अगर आप इस बोर्ड की तरफ आप देखिएगा, Mn2CO10 के बारे में आपको बात बताना चाहता हूँ। आपके पास एक डाई न्यूक्लियर है Mn2CO10, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे, अगर आप इसका आधा करेंगे यहाँ पे Mn, अगर आप सिर्फ लेंगे क्या, अगर आप यहाँ पे बेटा लेंगे MnCO5, अगर हम मोनो न्यूक्लियर इसका लेंगे, ये डाई न्यूक्लियर क्यों बना, तो यहाँ पे जब मैं लेता हूँ MnCO5 तो आपको पता है कि मैग्नीज के कितने इलेक्ट्रॉन है, सिकेंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, मैग्नीज के 5 और 2 हो गए 7 इलेक्ट्रॉन, इसके 10 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 17 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे जाके जो 17 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, अब इसको कितने चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। दैट इज व्हाई ये क्या कर रहा है, MnCO5 हमेशा क्या कर रहा है, ये किसी और को चाहता है। जैसे आप पढ़ते हो किसमें, ऑर्गेनिक की एग्जांपल देता हूँ, CH3 रेडिकल होता है, 1 इलेक्ट्रॉन अनप्योर, तो यहाँ पे और एक CH3 होता है, वहां पे भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप क्या बोलते हो कि यहाँ पे जब फ्री रेडिकल होगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, आपस में इन्होंने बॉन्ड बनाया, दोनों क्या हो गए, दोनों जब इन्होंने बॉन्ड बनाया तो अब CH3 बन गया, तो दोनों स्टेबल हो गए, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से जब 70 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज और 70 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आपस में यहाँ पे बॉन्ड बनाते हैं, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड आपस में बनाया, मेटल मेटल बॉन्ड, और वो मेटल मेटल बॉन्ड काउंट किया जा रहा है दोनों के लिए, तो जाके वहां पे वो बना रहा है स्टेबल कॉम्प्लेक्स। इसलिए जाके डाई न्यूक्लियर क्यों बनता है, इट इज द रीजन कि डाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनेट्स आप क्यों देखते हो यहाँ पे, क्योंकि ये मोनो न्यूक्लियर में यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, बट जब ये डाई न्यूक्लियर बनेगा तो ये यहाँ पे जाके स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो ये बनता है यहाँ पे बराबर ही बनाता है 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। अब जब इसको जाके 2 सोडियम से आपने इसको रिएक्ट करवाया, तो अब देखो बेटा MnCO5 नेगेटिव 2 टाइम्स है ना, तो MnCO5 नेगेटिव तो क्या आएगा, देखो Mn अभी हमने निकाला, इसका 17 था, 17 को ऊपर नेगेटिव आपने 1 किया तो +1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन, नाउ इट इज स्टेबल, नाउ इट इज स्टेबल। अब इनको देखेंगे, इनको बोलते हैं कार्बोनाइलेट एनायन, क्या बोलते हैं इनको, कार्बोनाइलेट एनायन, मेटल कार्बोनाइलेट एनायन, दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर जब आप पढ़ेंगे मेटल हाइड्राइड्स को, या हम आगे पढ़ेंगे किसी और रिएक्शन को, तो मेटल हाइड्राइड्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जाके हाइड्राइड सोर्स के लिए फिर हम मेटल हाइड्राइड को लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ उसके बारे में,
भी आएगी वो बात भी, अगर आज टाइम मिला तो नेक्स्ट रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी इसी तरीके से आप इसको रिएक्शन देखेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास है FeCO5 है, FeCO5 NaOH के साथ रिएक्शन। अगर आप इस रिएक्शन को देखेंगे, इस रिएक्शन में क्या होता है, जरा देखो इसको, FeCO5 NaOH के साथ रिएक्शन, या इसके इसी तरीके से दूसरे के साथ भी रिएक्शन होगी, इसके साथ NaOH के साथ भी होगा, या AlH सोडियम एल्युमिनियम हाइड्राइड किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा, जब NaOH के साथ ये रिएक्ट करता है तो ये होता है एक्चुअली इस तरीके से। देखो बेटा क्या होता है, आपके पास ही क्या FeCO5 फर्स्ट वन, तो मैं इसको लिखूंगा CO4, पूरा ध्यान देना Fe, ठीक है। अब यहाँ पे जाके मैं इसको डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, कोई गलती की मैंने नहीं, क्योंकि आपको पता है कि बैक टू बॉन्डिंग के जरिए से इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे NaOH आया, NaOH, ठीक है, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब क्या होता है, यहाँ पे जाके सबसे पहले ये OH आता है, यहाँ पे अटैक करता है इस कार्बन के ऊपर, वही इधर जाता है, ठीक है। तो जब ये हुआ तो क्या बना, इसके साथ हमें छेड़ना नहीं है, CO4 Fe डबल बॉन्ड C, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर गया तो यहाँ पे OH आया, ये वापस आए इधर आएगा, ठीक है। तो जब वापस आएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो जब ये वापस आ रहा है तो ये इधर जाएगा नेगेटिव, तो ये घूमेगा इस तरीके से, तो यहाँ पे बन रहा है COOH, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे ओवरऑल क्या होता है, यहाँ पे इस तरीके से बनता है, इसको देखिएगा जरा, जब यहाँ पे इस तरीके से होगा तो मैं इस H को यहाँ पे लिखूंगा इस तरीके से, ठीक है। ये अल्फा है, ये बीटा है। जनरली क्या होता है कि जो ये बीटा हाइड्रोजन है ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी के मेटल की प्रॉक्सिमिटी में होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये जो नेगेटिव है इसको आप ओवरऑल नेगेटिव, ओवरऑल जो कार्बोनाइलेट एनायन है ये बन गया वो, तो वो नेगेटिव बाहर आएगा, जो आप COH नेगेटिव देख रहे हो, ठीक है। अब क्या होता है नेक्स्ट रिएक्शन जो आप आगे देखेंगे, आगे आपको ये करनी होगी रिएक्शन, तो यहाँ पे देखिएगा आप क्या होगा, ये H जाएगा इधर, ठीक है, ये H जाएगा यहाँ पे जाके, ये शिफ्ट होगा इधर, जब H इधर जाएगा तो यहाँ पे जाके क्या होगा, यहाँ पहले मैं दिखाऊंगा एक स्टेप को, तब जाके सही होगा, अदरवाइज एक ही स्टेप में जब दिखाऊंगा तो आपको भी समझ नहीं आएगा कि सामने क्या किया। मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, CO4 Fe, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये जो नेगेटिव है मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा, OH यहाँ पे, और नेगेटिव जो है मैं बाहर लिखूंगा। अब मुझे पता है कि जो नेगेटिव है वो वाला आयरन और कार्बन के बीच में, आयरन और ऑक्सीजन के बीच में घूम रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब देखिएगा बेटा क्या होगा, अब ये जो H है, ये H नेगेटिव H यहाँ पे अटैक करेगा और ये इधर जाएगा, ये यहाँ पे जाके इस तरीके से यहाँ पे इधर आएगा। जब यहाँ पे आएगा तो इधर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड H दिखेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये बनेगा CO4 FeH, ठीक है, हाइड्राइड बन गया, ये मेटल हाइड्राइड बन गया ये, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा एज ए गैस। तो इस तरीके से अगर आप इसको देखेंगे तो कार्बोनाइलेट एनायन से यहाँ पे जाके बन गया कि हाइड्राइड बन गया, हाइड्राइड एनायन। तो यहाँ पे ये रिएक्शन यहाँ पे लिखी है, तो इसने दिखाया है यहाँ पे आपको, फर्स्ट स्टेप में COH पहले बन गया, उसके बाद CO3 COH, यहाँ पे जब NaOH फर्दर ऐड किया तो यहाँ पे बन गया NaH FeCO4, ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट बाहर निकला। फर्दर अगर H+ से ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से ये बनेगा। इस बेस को बोलते हैं, अबो रिएक्शन इज नोन एज हैबर बेस रिएक्शन, इसको भी याद रखिएगा, अगर रखना चाहोगे तो रखना, अच्छी बात है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल हैलोजन के साथ आप रिएक्ट कराओगे तो FeCO5 X2 के साथ जब रिएक्ट करेगा तो X2 कितना, एक X कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको जब क्लोरीन आपको एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्लोरीन Cl2 कितने देगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो आपको यहाँ पे X2 की जगह सिर्फ एक CO आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। मैंने पहले बताया सब्स्टिट्यूशन में आपको ये चीज देखना होता है बेटा कि जितने आपका इलेक्ट्रॉन स्पीशीज वाला आएगा उतने ही यहाँ पे जाके बाहर निकलेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बाहर निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आया, तो 2 आ गई। क्यों आ गई 2 Cl, क्योंकि एक क्लोरीन दे रहा है एक ही इलेक्ट्रॉन, 2 Cl देंगे 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से यहाँ पे जब भी जाके 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आ रहा है तो वहां पे डेफिनेटली अगर आपका डाई न्यूक्लियर है वो जाके डेफिनेटली मोनोन्यूक्लियर में कन्वर्ट होगा, क्योंकि इसको अभी तक MnCO5 को 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज था, क्लोरीन देगा एक इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जरूरत ही नहीं नेगेटिव बनने की या डाई न्यूक्लियर बनने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए जब डाई न्यूक्लियर को यहाँ पे हैलोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं जनरली तो यही बनता है क्या, मोनोन्यूक्लियर। तो मेटल मेटल बॉन्ड क्लीवेज होता है।
मेटल मेटल बॉन्ड क्लीवेज होता है और बनते ये इसके साथ हेलोजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है बेटा। इसी तरीके से आप इस रिएक्शन को भी देख सकते हो, CO2 COA2 X नेगेटिव एंड दिस, ये इस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन। फर्दर रिएक्शन विद हाइड्रोजन भी हैं तो बनते हैं मेटल हाइड्राइड्स, कार्बोनाइल हाइड्राइड्स। तो अगर आप देखेंगे सम कार्बोनिल्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन टू गिव द कार्बोनाइल हाइड्राइड्स। CO2 CO8 H2 के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा CuCO4 H। फिर से वही बात, वही सेम केस यहाँ पे भी और यहाँ पे भी वही केस के, यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, डाइन्यूक्लियर बन गया था, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आ गए, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ये बराबर 8 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बनेंगे, ठीक है। Even though these compounds are named as hydrides, these are known as to behave as a proton donor. Remember this. जिस तरीके से आपके पास AlH4 सोडियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, वहां पे जाके हाइड्राइड डोनर है, यहाँ पे जाके जो ये वाले हाइड्राइड्स है, they act as proton donor. The neutral hydride is like COCO4H. यहाँ this behaves as shown below. ये एसिड्स भी यूज यहाँ पे जाके होते हैं, क्या यहाँ पे होता है कि ये H पॉजिटिव भी दे रहे हैं। बट अगर आप इसी को देखेंगे, द एनायनिक हाइड्राइड्स लाइक HFeCO4 नेगेटिव आर ट्रू हाइड्राइड्स एंड बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट। मुझे यही बात आपको बतानी थी बेटा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो ये वाला जो स्पीशीज है, देखो अगर न्यूट्रल वाली स्पीशीज है तो ये एसिड यहाँ पे जाके एक्ट कर रहा है। these hydrides act as a acid and but these hydrides act as a यहाँ पे जाके reducing agent, they will give the H negative ion। तो ये कब होंगे, जब एनायनिक हाइड्राइड्स होंगे। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि आपका वहां पे डोनर जो होगा वो किस तरीके से, बेस किस तरीके से होगी, उस तरीके से एक्ट कर रहा है। एम्फोटेरिक है ये, ठीक है। ये बोथ एक्ट है, जो मेटल जो कार्बोनाइल हाइड्राइड्स है ये एक्ट कर रहा है बोथ प्रोटॉन डोनर एज वेल एज यहाँ पे जाके ये एक्ट कर रहा है बेस भी और एसिड भी कर रहा है एक्ट, क्योंकि जाके H नेगेटिव जब देगा तो वहां पे जाके बेस एक्ट कर रहा है, ठीक है बेटा। तो ये एम्फोटेरिक नेचर है। तो रिएक्शन विद नाइट्रिक ऑक्साइड भी देखिएगा, बस लास्ट रिएक्शन, क्योंकि टाइम वैसे लेस देन 1 मिनट है, नहीं होगा, कल होगा, छोड़ दो क्योंकि 1 ही मिनट बचा। तो इंशाल्लाह टुमारो आई विल टेक दिस रिएक्शन विद नाइट्रोसिल, क्योंकि मुझे ये प्रिपरेशन में भी आएगा नाइट्रोसिल में, इसलिए जाके इसको मुझे लेना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच। तो अगर कोई क्वेश्चन होगा तो बताइए ना, अगर ये लेंगे भी तो अच्छा है। FeCO5 2 टाइम्स NO दे रहा है 3 इलेक्ट्रॉन, कितने 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, इसलिए जाके यहाँ पे कितने 2 जब आए तो 6 इलेक्ट्रॉन इसने दिए, तो यहाँ पे कितने CO को निकलना पड़ेगा, 3 CO को, तो इसे जाके 3 CO रिप्लेस हो रहे हैं और जाके 2 NO आ रहे हैं, क्योंकि 1 NO 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, ठीक है बेटा। तो ये भी इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि ये फिर से आएगा वापस हमें जब हम नाइट्रोसिल पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये इस रिएक्शन लिखेंगे, मेटल कार्बन के रिएक्शन इस तरीके से कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये थे रिएक्शंस ऑफ